الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو کائنات میں مختلف مقام، مختلف فضیلت، مختلف فوقیت عطا کی۔ جیسا کہ مہینوں میں تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کے مہینے کو بنایا، دنوں میں تمام دنوں کا سردار جمعۃ المبارک کے دن کو بنایا، مخلوق میں تمام مخلوق کا سردار حضرت انسان کو بنایا، انبیاء میں تمام انبیاء کا سردار جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شمس الضحیٰ بدر الدجا مکین گنبد خضرا لا یمکن الثنا کما کان حقہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنایا۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے راتوں میں تمام راتوں کی سردار لیلۃ القدر کو بنایا۔ یہی وجہ تھی کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر کی رات میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کیا ہے تمہیں کیا معلوم؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت جناب موسیٰ نبینا علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام میرے بچوں کے لیے دعا کر دو، اللہ انہیں عمر عطا کر دے، اللہ انہیں لمبی عمر عطا کر دے۔ تو حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کس لیے؟ تو کہنے لگی میرے بچے چھوٹی چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں، اس لیے دعا کروا رہی ہوں اللہ انہیں طویل عمر عطا کر دے، اللہ تعالیٰ انہیں طویل عمر عطا کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پھر بھی کتنی عمر؟ تو کہنے لگی کوئی 100 سال کا ہو کر فوت ہو جاتا ہے، کوئی 200 سال کا، اور کوئی 300 سال کا، اس سے زیادہ نہیں جیتے، اس سے زیادہ طویل عمر نہیں ہوتی۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو ارشاد فرمایا، فرمانے لگے کہ عنقریب ایک ایسی امت آئے گی جس کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو جب اس عورت نے سنا تو کہنے لگی اگر اتنی عمر ہوگی تو اتنی عمر تو میں ایک سجدے میں گزار دوں گی۔ تو یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پریشان ہو گئے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ پریشان نہ ہو، اللہ نے آپ کے لیے ایک رات نازل فرما دی، ایک رات بنا دی جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور اس رات کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہوگی، اس میں تم عبادت کرو گے، فرشتے تمہیں سلام کریں گے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، سلامتی تم پر بھیجتے ہیں فرشتے، سلامتی لے کر اترتے ہیں، یا حتی مطلع الفجر، یہ معاملہ فجر تک چلتا رہتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی فرماتے تھے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرو تاکہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ لیلۃ القدر اعتکاف میں بیٹھنے کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ 21 23 25 27 29 یہ رات، اور ہم نے صرف ایک مشہور رات 27 کو بنا لیا ہے،
याद रखिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के हर आखिरी अशरे में एतकाफ़ में बैठते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी साल 20 दिन एतकाफ़ किया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एतकाफ़ में बैठना ये सुन्नत है, और ये सुन्नत मुअक्कदा फिल किफ़ाया है। अगर पूरी मस्जिद में कोई एक शख्स भी एतकाफ़ में बैठ जाता है तो सुन्नत पूरी हो जाएगी। अगर कोई भी नहीं बैठता तो फिर पूरे महल्ले को गुनाह मिलेगा। अहले महल्ला से वो किफ़ायत पूरी ना होगी, बल्कि पूरे अहले महल्ला को गुनाह मिलेगा। अगर हम एतकाफ़ में तो बैठते हैं, मगर हमारे एतकाफ़ में बैठने का तरीका मुख्तलिफ है, हमारा मकसद हमारे सामने नहीं होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एतकाफ़ में एक दिन बैठता है, आपने फरमाया उसके दरमियान और जहन्नम के दरमियान एक खंदक का फासला कर दिया जाता है। ये खंदक क्या है? साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी खंदक का फासला क्या है? फरमाया ज़मीन और आसमान के दरमियान जितना फासला है उतना एक खंदक का फासला है। जहन्नम और खंदक के दरमियान इतना फासला होगा। तो मेरे दोस्तों, आज हम एतकाफ़ में तो बैठते हैं, 20 रमज़ान है, हम एतकाफ़ में बैठेंगे, मगर एतकाफ़ में हम फजूल बातें, फजूल लग़वियात करते हैं, खेल कूद की बातें करते हैं। हम इबादत के मकसद से तो बैठते ही नहीं, या तो खाने पीने के मकसद से बैठते हैं या टाइम पास करने के मकसद से बैठते हैं। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया कि एतकाफ़ में बैठने का असल मकसद ये है कि लैलतुल क़द्र को तलाश करो, मगर आज हमारी मसाजिद में एतकाफ़ में बैठने वाले का मकसद लैलतुल क़द्र तलाश करना नहीं है, बल्कि एतकाफ़ में बैठने का मकसद या तो टाइम पास करना है या फिर जो है खाना पीना मकसद है। असल मकसद एतकाफ़ का फोत कर देते हैं, असल मकसद को भूल जाते हैं। हालांकि जब इंसान एतकाफ़ में बैठता है, कुरान करीम में आता है अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, इंसान एतकाफ़ में बैठता है, उसके दरबार में आ जाता है, उसके दरबार में अपने सर को झुका देता है, उसका फ़कीर बनकर बैठ जाता है और ये सदा लगाता है, रब्बे करीम जब तक तूने मुझे माफ़ न किया मैं तेरे दर से नहीं जाऊंगा, तूने मुझे मेरी माफ़ी का परवाना ना दिया मैं इस दर से नहीं उठ कर जाऊंगा। तेरे दर का फ़कीर हूँ, जो तेरे दर पे फ़कीर बन के आता है अल्लाह तू उसकी इज्जत करता है। असल एतकाफ़ में बैठने का मकसद तो ये था कि हम अपने अल्लाह को राज़ी कर लें, हम लग़वियात में ना पड़ें, खेल कूद में न पड़ें, इधर उधर की बातों में मशगूल ना हो। आज हम एतकाफ़ में तो बैठ जाते हैं, मगर एतकाफ़ के असल मकसद को हम हासिल नहीं करते। याद रखें, एतकाफ़ सुन्नत 10 दिन का है, यानी 20वें रोज़े की शाम को सूरज गुरूब होने से पहले मस्जिद में बैठना और चांद नज़र आने तक अल्लाह के दरबार में ही बैठे रहना, खाना पीना, सोना और इबादत करना। थोड़ा सा सोना, सोने का मतलब ये नहीं कि खाना पीना और सोना, बल्कि खाना पीना और थोड़ा सा सोना और ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करना। एक एतकाफ़, दूसरी किस्म एतकाफ़ की सुन्नत, पहली सुन्नत है, दूसरी किस्म एतकाफ़ की है नफल। 3 दिन का एतकाफ़ भी कर सकते हैं, 6 दिन का एतकाफ़ भी कर सकते हैं, 5 दिन का एतकाफ़ भी कर सकते हैं, रमज़ान में भी एतकाफ़ कर सकते हैं, गैर रमज़ान में भी एतकाफ़ कर सकते हैं। ये जो दूसरी किस्म है इसमें रोज़ा रखना, ये जो दूसरी किस्म है ये नफल एतकाफ़ है। और एतकाफ़ की तीसरी किस्म जो है वह है नज़र मुअय्यन। किसी आदमी ने नज़र मान ली, मन्नत मान ली कि मेरा एक काम हो गया तो मैं इतने दिन एतकाफ़ में बैठूंगा, ये है एतकाफ़ नज़र मुतअय्यन, यानी नज़र एतकाफ़, नज़र का एतकाफ़ में बैठने की नज़र मानना, ये वो एतकाफ़ है जो है मुअय्यन है, जो उसने मुअय्यन किया है अपनी नज़र के साथ। एतकाफ़ की 3 किस्में हुई, एतकाफ़ सुन्नत, सुन्नत मुअक्कदा फिल किफ़ाया, अगर कोई भी ना बैठा तो सबको गुनाह होगा, अगर एक भी बैठ गया तो सबकी तरफ से अदा हो जाएगी। एतकाफ़ नफल, आप कभी भी एतकाफ़
आप कर सकते हैं। रमज़ान शर्त नहीं है, बल्कि गैर रमज़ान में भी आप एतकाफ़ कर सकते हैं। ये है नफल एतकाफ़। तीसरा है जो है नज़र मुअय्यन एतकाफ़। किसी आदमी ने मन्नत मांगी कि मेरा काम ये हो गया तो मैं ये एतकाफ़ में इतने दिन मस्जिद में बैठूंगा, ये है मुअय्यन एतकाफ़। नफल एतकाफ़ वैसे भी आप कर सकते हैं, जब भी मस्जिद में जाएं एतकाफ़ की नियत कर लें, जितने देर मस्जिद में बैठे रहेंगे आपको सवाब होगा। ये एतकाफ़ के मुख्तसर सी फ़ज़ाइल और फ़जीलतें और फ़वाइद जो मैंने आप हज़रात के सामने ज़िक्र किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस रमज़ान में हमारे लिए मग़फ़िरत का सबब बनाए, इस रमज़ान को हमारे लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। और जो लोग एतकाफ़ में बैठ रहे हैं, अल्लाह उनके एतकाफ़ को कबूल फरमाए, कबूल फरमा कर उनको इसके बदले में जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। एक बात और समझ लें, औरतें भी एतकाफ़ कर सकती हैं। औरतें एतकाफ़ अपने घर में करेंगी, अपने एक मखसूस जगह बनाएंगी, वहाँ पर एतकाफ़ करेंगी। मस्जिद में एतकाफ़ नहीं होगा। और एतकाफ़ में एक दूसरे से बात नहीं करेंगी, ज़्यादा ज़रूरत के तहत बात करेंगी, ज़्यादा अपनी इबादत में जो है वो वक़्त को सरफ करेंगी। तो औरतें भी एतकाफ़ कर सकती हैं, मगर औरतें न मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाएंगी न जुमा। हाँ, अगर कोई शख्स ऐसा एतकाफ़ में बैठ गया जिस मस्जिद में जुमा नहीं होता, तो फिर वो जुमा पढ़ने के लिए किसी जामिया मस्जिद में जाएगा और जुमा पढ़कर बग़ैर किसी से बात किए आ जाएगा और अपने एतकाफ़ में बैठ जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।